Professor Naveen Gupta, sir. Thank you, sir, for accepting my request, sir. We are in the 6th day of the program and have 3 sessions daily. And number of topics we have covered: quantitative methods, qualitative methods. बहुत ही limited दायरा था. Professor Grishwar Mishra Sahab was with us. Then we were having Professor Nizamuddin, Professor Aqil Ahmed, Professor Rajiv Pandey from Lucknow, Professor Ishipal from Gurgaon, Professor Ghazi Shahnawaz from Jamia Islamia. Friends, Professor Naveen Gupta Sahab is working as the director of the Hindustan Institute of Management and Computer Studies located in Fara, Mathura. बहुत ज़्यादा मेरा एसोसिएशन है सर के साथ में. फ्रॉम मैनी ईयर्स वी आर वर्किंग सम ऑफ द कॉमन इश्यूज ऑल टुगेदर. और इट इज़ एन ऑनर सर, यू एक्सेप्टेड माय रिक्वेस्ट. मैं बार बार कहता रहूँगा, जब भी सर का मैसेज आता था तो एकदम दिल में ये होती थी कि रिग्रेट ना आ जाए, लेकिन वो आना नहीं था. दैट आई नो कि वो बेइंतहा मुझसे मोहब्बत करते हैं. He is a meritorious alumnus from the University of Meerut and owns a doctorate degree from IIT Roorkee. He has expertise in psychology and serves as a management consultant, holding over 28 years of the academic experience plus. Additionally, he has previously served as a researcher at WHO, ICMR. Professor Gupta has successfully mentored a large number of doctoral students in their research and has organized more than 100 plus corporate training programs. He has been a member of the board of prestigious institutions and has also served as editor-in-chief of the Journal of the Projective Psychology and Mental Health and the International Journal of Management, Development and Information Technology. Professor Gupta has provided training and consulting services to several business and government organizations. Since morning to the evening, sir is running to make a difference in the living beings of human beings. Wonderful contribution. Furthermore, he is a member of the several esteemed committees in India. Professor Gupta wrote a book called Life Skills for Success, 25 Steps. मेरे पास किताब है, मैं पढ़ रहा हूँ. अगर मौका मिले तो आप भी इसको पढ़ने की कोशिश करिए. Success doesn't just happen. You need to plan to make it happen. यही सारी कोशिश है कि हम किस तरह से आगे बढ़ें और जो सक्सेस का जायका है वो हम टेस्ट कर पाएँ. And published several papers in prestigious worldwide journals. Presently, he is affiliated with the Indian Air Force as a counselor. Indian jails also. He is looking after number of activities in the Central Jail of Agra. He is of the opinion कि अलीगढ़ की जिम्मेदारी मैं लूँ, लेकिन बड़ा मन करता है कि उन लोगों के काम आया जाए जो कि really they are in needs of us. He was formerly selected as chairman of the All India Institute of Medical Sciences. Professor Naveen has had a significant influence in the field of social and community work due to his profound interest in the subject matter. Society का मैंने सर से बहुत सीखा है. सर के बहुत सारे चैरिटी एंड सोशल एक्टिविटीज़ चल रही हैं आगरा में. नंबर ऑफ केसेस वो शेयर करेंगे. मैंने जो अप्लाई किया सर का एक अप्रोच को, इन फ्रॉम लास्ट 8 years वन ऑफ द मेड इज़ वर्किंग इन माई फैमिली एंड शी हैज़ 14 members in the family and girls and mothers are working all together since morning to the evening to take care of the family. 14 लोगों की जिम्मेदारी संभालना कितना मुश्किल होगा. During the discussion, he actively practiced this issue जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ
कि एक ई रिक्शा मैंने ख़रीद के उस फैमिली को दिया फ्रॉम माई पॉकेट, और यू कैन इमेजिन कि हर दिन 1000 से 1200 रुपये जब वो बच्चा कमा के लाता है तो उस घर के फैमिली के मामलात कैसे रहे होंगे. I never, I never I am never expecting a single penny as a return. लेकिन जो खुशी मिलती है कि शायद मैं किसी फैमिली की अच्छाई या खुशहाली की वजह बन पाया हूँ, तो वो सर आपकी वजह से है. तो देखिए, बड़ों से सीखने के लिए बहुत कुछ होता है, और शायद हम सब लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं. और कितनी मेहनत और कितनी फ़िक्र रही होगी कि सर को मैं यहाँ पर लाऊं, और ऐसे ही अच्छे अच्छे रिसोर्स पर्सन्स मैं जुटाता रहूँगा, और इसी तरह से आप लोग अपना पार्टिसिपेटरी अप्रोच अपना के रखें. सर आइए, सर नवीन सर, नसीम सर आइए सर. चलो my role is over. ये मिल गया था जो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मेरे पर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. एक तस्वीर और लो सर के साथ. Thank you, sir. Thank you so much. Aye, sir. Over to you, sir. Thank you very much, Professor Khan, for such a lovely and warm welcome. इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया, मुझे भी नहीं पता था मेरे बारे में. Great. और इन्होंने कर दिया, मेरे को बड़ा बना दिया है ना. मेरा तो कंपटीशन था कि मैं I must look more younger than him, पर आपने बड़ा बना दिया था, कह के ही बड़ा बना दिया. आप हैं sir. Nevertheless, I will talk about the action research today. And recently, Professor Girishwar Mishra ji, who has been with you as a resource person, so we were in a conference in Sonipat. We were talking a lot about the kind of research we are doing in India. वो उन्होंने बड़ा अच्छे से बताया. उनका सारा sense of humor is also good. I hope you are all comfortable in Hindi also, है ना? अक्सर में थोड़ा हिंदी में बात करनी ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को. South से है? Yeah, I can both. Okay. How many of you are from South? Which part of South? Tamil Nadu. Great. Kerala. ठीक है. So I'll try to make you comfortable in terms of the communication. Communication is not a big issue, only if we understand each other. And the best, if we are connected, तो language कोई barrier है ही नहीं. I have worked in Tamil Nadu, I have worked in Kerala also. I know Tamil, kuncham. Okay. So the best communication when you speak from the heart. When we talk about the action research, तो गिरीश्वर मिश्रा जी और हम लोग बात कर रहे थे. I was called to talk about the action research. तो वही कह रहे थे जो traditional research what we are doing, वो एकदम बंद कर देनी चाहिए. You know, होता क्या है? I'm closely associated with the Aligarh Muslim University, especially with the management department. Almost on every week, कहीं ना कहीं मैं उनके वाइवा, PhD वाइवा involved रहता हूँ. They are doing wonderful work, undoubtedly. इतना बढ़िया काम AMU में होता है. In terms of the research methodology, वो marvelous, and that's the reason मैं इसके साथ associated होता हूँ. As you know, being professor, तो कोई financial incentive तो होता नहीं है. आलसी हो जाते हैं प्रोफेसर लोग, क्या करना है यार कितना. But I love research methodology, बहुत अच्छा होता है. लेकिन कई चीजें उसमें समझ में नहीं आती है. गिरीश्वर मिश्रा जी ने कहा PhD is what, like जैसे हवन करना है, फूल चढ़ा दो, पानी चढ़ा दो, घी डाल दो, थोड़ा घी कम रह गया, अच्छा और डाल दो, और PhD थीसिस स्वाहा. वो मैं काफी टाइम से सोच रहा था. मैंने कहा यार, even what I did from IIT रुड़की, तो मैंने करा क्या यार, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया. बस ये बताया कुछ एग्जीक्यूटिव, वी हैड ए कंसल्टेंसी ऑफ BHEL एग्जीक्यूटिव, हरिद्वार BHEL का.
कि 0.05 पे तो ये स्ट्रेस में थे, 0.01 इस पे जब करा तो ये स्ट्रेस से बाहर हो गए। तो आम पब्लिक को इससे क्या लेना देना भाई? आर दे अंडर स्ट्रेस और नॉट? आर दे हैप्पी और नॉट? एक बड़ा पीएचडी थीसिस मैंने कराया, 65 इयर्स ओल्ड पर्सन, वेरी एंथुसियास्टिक, सर मुझे आपके अंडर में करना। मैंने यार चलो हैप्पीनेस पे बात करते हैं। जो एनसीआर के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, आर दे रियली हैप्पी? इफ यू कंपेयर विद दी, कहाँ से करें, क्योंकि सैलरी तो बहुत अच्छा है उनका, वर्क लाइफ बैलेंस गड़बड़ाता है, ये करता है। माय गॉड, मैंने कहा बिल्कुल सिंपल सिंपल मुझे ये चाहिए, आर दे हैप्पी और नॉट? बस लास्ट तक यही बताता रहा मेरे को कि 0.05 पे तो है। मैंने माथा पीट लिया, मैंने कहा भाई साहब इसको रख दो, थीसिस तो आपको अवार्ड हो जाएगी। तो पीएचडी जब उनका वाइवा हुआ तो उनसे कहा कि अगर बहुत स्टैटिस्टिक्स यूज किया आपने, मैंने कहा इज मास्टर ऑफ द स्टैट्स। तो मैंने कहा, तो जो वाइस चांसलर ऑफ AKTU कहने लगे, अगर इफ वी कैन सॉल्व इसको, मेरे को ड्राइव करके बता दे काई स्क्वायर ई, तो इसको 2 पीएचडी देंगे। मैंने काई स्क्वायर इज वेरी, मतलब इसमें तो बड़ा बेसिक सा चीज है। तो आई वाज श्योर कि काई स्क्वायर तो इसको आता ही होगा। पीएचडी वाइवा खत्म हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एग्जामिनर आए हुए थे। मैंने कहा आप इससे काई स्क्वायर पूछे? अरे नहीं सर छोड़ दे। मैंने नहीं पूछी, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। भाई साहब काई स्क्वायर पूछा एंड ही वाज जस्ट जीरो। माय गॉड, मैंने यार इतने स्टैट्स, इतने सॉफ्टवेयर आगे हैं, सबको कहीं पता ही नहीं है क्या करना है, कितना करना। Nevertheless, तो जो अब बात कर रहे हैं, we are in a poor country, we cannot afford such type of research. So I want to talk about the action research, what Professor Khan was talking. If you find any problem in any area, okay, just try to find out, propose, observe. You may talk in a research parlance, research design बनाया, उसका impact देखा, pre-intervention, intervention and post-intervention. The way you want to have qualitative research, quantitative research, qualitative, whatever, वो आप कर दीजिएगा। आपको क्यों PhD भी चाहिए, research paper भी चाहिए, है ना? But action में काम करोगे तो बहुत आपको satisfaction भी मिलेगा. You'll have a lot of satisfaction, and then you can do something. कुछ तो कर रहे हैं ना? We are contributing towards the development of the society and the nation. So I will discuss about whatever the experience I had about the action research. In 2005 and 6, I was in Dubai for teaching assignment. तो वहाँ भी कुछ लगा कि except Dhiram, what I am doing, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था मेरे को. Then I decided to go back to India, और it was a matter of chance कि जैसे कह रहे थे मोहब्बत बहुत है, तो I am from a city of love, romance, ताजमहल. तो I stay in आगरा. तो वहाँ से वो प्रोजेक्ट की उस बात करेंगे, वहाँ से शुरुआत हुई, कैसे हुई, क्या हुई, वो मैं सब I'll discuss with you and how it can be a part of your research. उससे पहले we will talk about the action. सुबह से आप एक्शन में नहीं है, है ना? रिफ्लेक्शन मोड में है. एक्शन में सिर्फ चाय पीने गए आप लोग, है ना? So I was looking, I was observing your action. As I am a behavioral scientist, तो behavioral scientist को observer बहुत अच्छा होना पड़ता है ना? How many of you are from psychology streams? 1, 2, 3, 4. Oh, so we are in minority, है ना? Rest from social science or natural science? Social science. Which part of social science? Education. Good. Education में तो action research is wonderful tool. Is there any takeaway of this action? Team working, very good. What else? Smart work. Wonderful. We can change techniques. Time reductions. Less human efforts. है ना? Good leadership. Yaqib, नहीं, you told your name? Nasib. Nasib Khan. Yeah. Anything else? Use the new techniques, new technologies, new techniques. New techniques.
participative. Sorry? So, wonderful. Let me recapitalize what we have discussed or what you have shared the data. If I observe, so I can collect the data and I can put up. See, I'm a scholar of the management. Most of the time we talk about leadership. It is a subject. Discover, learn, motivate कैसे करना, क्या करना, बहुत सारा research work चलता रहता है. Flood of literature on motivation, leadership, number of programs चलते रहते हैं, and I'm also corporate trainer. So one thing I could learn is what is the role of a manager. And everybody is a manager somewhere, somehow. But this task, the Warsaw was given this responsibility, leadership. It was a matter of chance only. कुछ लोग force leader होते हैं, कुछ inborn leader होते हैं. वो एक अलग मसला है, which we'll talk some other day, not today. Now, what we need to understand the role of a manager. इस चीज से मेरे को ये समझ में आया, एक informal word use करता हूं मैं, पोलका. छोटा सा एक MBA कोर्स भी आप ले लो साथ में additional. Hello. So what is the role of a manager? Maybe at home or wherever you are. This is planning, organizing, leadership, controlling and achieving. तो हमने क्या किया, जब टास्क दिया गया तो हमारी जो अप्रोच है इट इज ह्यूमन बिहेवियर, एकदम रिएक्टिव मैनेजमेंट, एकदम रिएक्टिव मैनेजमेंट कि हम लोग जो है एकदम रिएक्शन पे आ जाते हैं, काम करो यार जल्दी से करो. तो इट इज ए मैटर ऑफ माइंडसेट, तो रिएक्टिव और प्रोएक्टिव. Or there's a good saying, old saying, if you have a good planning, so 50% work is already done. We don't spend time on planning. Game आया task फटाफट फटाफट फटाफट. Planning कब आती है? When there is a pressure, when there is a challenge. तो मैंने एक challenge आपको artificial create किया. वहां भी यही बोला था मैंने. या तो ये fact था, honesty है diplomacy के साथ. ओनिडा में भी मैंने ऐसे ही बोला था उनको कि तो बैन जब चैलेंज आता है तो माइंड काम करना शुरू करता है. इफ यू आर इन अ कंफर्ट जोन्स डजंट वर्क एट ऑल. कोविड में देखो कितना इनोवेशंस हुआ, तो बहुत लॉस भी हुआ है ना, लॉस तो हुआ लेकिन कितना इनोवेशंस हुआ है. तो प्लानिंग, तो मैं इस पे ज्यादा आई विल नॉट टॉक मच अबाउट इट. द होल में जितने भी अपने मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, MDP 2-2 दिन के होते हैं. These are very very costly programs. ठीक है, for the executives because they come from the corporate, so they can afford, है ना. हम लोग टीचर्स की तरह से नहीं है बेचारे. तो यही से शुरू करता हूं और 2 दिन इसी पे बात करता हूं, इसी पे बात करता हूं. फिर उसके बाद आता है आपका O, प्लानिंग हो गया. O, ऑर्गेनाइजिंग. What to organize? Organizing resources. Resources typical हम लोग कहते हैं मैन पावर, मैन मटेरियल, मशीन. हमारे पास क्या था? What were the resources available? हम लोगों के पास मैन पावर थी, मटेरियल में सिर्फ बॉल था. I appreciate lot of resources are available around us, but we don't want to see them. The bag, the idea. थोड़ा मैंने यहाँ सा डिप्लोमेसी किया. वर्षा का आइडिया स्टार्टिंग में था कि कैन वी यूज दिस बैग. मैंने कहा ये तो सारा गेम ही फ्लॉप हो गया. तो वर्षा ने तो मेरे को ही आउट कर दिया. तो उस टाइम मैंने कहा नो यू कैन नॉट, है ना. तो दिस वाज द आइडिया, बट लेटर ऑन इट केम आफ्टर लॉट ऑफ राउंड एंड द प्रेशर एंड द चैलेंजेस. इट केम फ्रॉम नसीब. कैन वी यूज दिस? तो मैंने धीरे से कहा, मैंने कहा कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था. ये बहुत टाइम के बाद आता है कि रिसोर्सेज आर अराउंड अस, बट वी डोंट, वी वांट टू ब्लेम. इफ इट इज नॉट पॉसिबल, इफ नो वन कैन डू, हाउ आई कैन डू? Japanese, they say different thing.
If no one can do, I can do. I can do. कई जगह ये गेम में जब कराता हूं तो लोग एकदम विड्रॉ कर लेते, सर पॉसिबल नहीं है 4 सेकंड में, कर ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल एट ऑल. But you took a challenge. That's I really appreciate. It was an artificial challenge. बहुत अच्छी स्टोरी है, केस स्टडी है, बहुत मतलब फैक्ट है केस स्टडी. Japanese they are very fond of the fresh fish. So once they had a meeting कि how to increase the sale. So somebody gave idea like Naseeb, can we have the pool, water pool? है ना? Yes, so that the fish are alive. Yes, there was a jump in the sales. Then again there was a meeting, competitors, market ज़्यादा ऊपर जा रहा था, कि कैसे कर सकते हैं? तो फिर then Naseeb came with this new idea. Can we have a shark fish in this pond? लोग हंसे, इससे क्या होगा यार, क्या होगा? तो उसने कहा just try यार, यंग मैनेजर है, थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं. And what happened? जैसे शार्क फिश को उसके अंदर छोड़ा गया, तो all the small fish थी, they were just इधर उधर भागा. And consequently there was a blood circulation. मछली जरूर जान से गई, और ब्लड सर्कुलेशन जैसी बढ़ा, तो टेस्ट में एकदम, and there was a quantum jump in the sales. एकदम केस स्टडी बिल्कुल ठीक है, फैक्ट बेस है. तो sometimes challenge in the life, all kind of stress is not, साइकोलॉजी के लोग समझते हैं कि वो नॉन फंक्शनल नहीं है, डिसफंक्शनल नहीं है. कुछ स्ट्रेस हमें, तो हर आदमी को एक लेसन मुझे मिला इस गेम से, हर आदमी के पास एक शार्क होना ही चाहिए, सो दैट वी आर प्रोडक्टिव. नेक्स्ट, इसको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि ये मेरा पर्पज भी नहीं था. लीडिंग, देन अगेन द होल डे वी नीड check your leadership style. Is it a participative or a democratic or autocratic? बहुत सारे मॉडल्स है, टास्क ओरिएंटेड है, ह्यूमन ओरिएंटेड है. We will not talk much about it. It was because matter of chance. by lottery system से वर्षा was a leader. तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो लीडर यहाँ पर हो जाए, है ना. Then controlling, आप समझ गए चीजों को, conceptualize कर लिया टास्क को, then you can, and then achievement is your 4 second. So wonderful once again. Let us clap to each other. Can we? Now I will talk about my own action which I have taken in Agra. Action research. Action research में क्या है? First you observe the problem, then कुछ उसमें प्लानिंग करिएगा, प्लानिंग के बाद उसको एक्शन में आइएगा. These are the steps. तो सब मॉडल्स हैं, मॉडल्स की बातें करते हैं. फिर आर रिफ्लेक्ट करेगा. So this is all action research. The concept was given 1944 by Kurt Lewin, a psychologist. Kurt Lewin ने दिया था कि एक्शन रिसर्च, और एजुकेशन में तो इट वाज वेरी वेरी पॉपुलर, है ना. हाउ यू कैन, जैसे इसी तरीके के बच्चे, द एब्सेंटिज्म रेट इज गोइंग अप, हाउ वी कैन सॉल्व, क्या कर सकते हैं. कैन द टीचिंग बी एक्शन ओरिएंटेड, है ना. इफ अ टीचर से कि बच्चे खराब हैं, तो देन वी नीड टू चेक द लीडरशिप स्टाइल ऑफ अ टीचर आल्सो. बच्चे तो ऐसे ही मिलेंगे, हर जगह ऐसे ही मिलेंगे, है ना. इट इज अप टू यू हाउ यू कैन मेक देम एंगेज. वी ब्लेमिंग फॉर द रिसोर्सेज, क्या करूँ, मेरे को स्टूडेंट्स ही ऐसे मिले, मुझे कंट्री ऐसे मिला, मुझे सिटी ऐसे मिले, है ना. कुछ लोग तो अपने नक्षत्रों को भी गाली देने लगते हैं, किस नक्षत्रों में पैदा हो गया था, पड़ोसियों से परेशानी साथ में. बट लुक एट सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, बाय गॉड, एक बहुत बढ़िया जॉब तो मिल रहा है, डिसेंट ग्रेसफुल, स्टिल दे हैव लॉट ऑफ कंप्लेंट्स, है ना. तो वही फिर हम जब थेरेपी में आते हैं हमारे पास, तो वही सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड थेरेपी, ये सब सीबीटी में हम लोग यूज करते हैं एज ए साइकोलॉजिस्ट. तो उस पर हम बात नहीं करेंगे. अब when I was in दुबई, तो मैं बड़ा प्राउडली कहता था, आई एम फ्रॉम ए सिटी ऑफ ताजमहल, आई एम फ्रॉम ए सिटी ऑफ रोमांस. तो लोग अक्सर ये धीरे से कह देते थे, इज दैट ओके, इतना इंग्लिश, इज इट ओके,
sorry, Hindi. Whenever you find problem, please check me, stop me, because I'm very मतलब used to in Hindi, because अभी कभी ऑटो ड्राइवर्स के साथ काम कर रहे हैं, कभी जेल में काम कर रहे हैं, वहाँ अंग्रेजी निकल जाती है, वहाँ भी सॉरी बोलना, मेरी अंग्रेजी भी खराब है और हिंदी भी खराब है, तमिल अच्छी है। तो अब वहाँ ये कहते थे कि भाई आगरा, तो बड़ा खराब सा लगता था, एंड स्पेशली व्हेन यू आर ए इंडियन, और व्हेन इंडिया की आप बुराई करें, इंडिया में तो ऐसा है, यार ठीक है यार, जैसा भी है, इट इज माय कंट्री यार, पुअर कंट्री, व्हाटएवर इट इज, एंड आई थिंक आई एम रेस्पॉन्सिबल इफ आई एम पुअर समवेयर समहाउ। मैंने करा तो कुछ नहीं, ये तो कोई ऑप्शन नहीं, देश छोड़ के भाग जाओ, कहाँ कहाँ भागो, कनाडा से भगा दिए जाओगे। तो मैंने कहा लेट अस गो बैक, है ना। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो बैक, तो एक ऐसे ही हमारा एक क्लब था, उसमें पाकिस्तानीज भी थे, फिलिपिनोज थे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के टॉस मास्टर, केरलाइट्स, एक डॉक्टर थी। उसने कहा कि व्हाट वी कैन डू फॉर डॉक्टर नवीन सो दैट ही कैन स्टे बैक। देन आई शेयर्ड अ स्टोरी, मेरे को एकदम याद आ गई एक्सटेम्पोर, मैंने देयर नथिंग रॉन्ग इन दुबई, दुबई इज अ ड्रीम लैंड फॉर सो मेनी पीपल। आई एम रादर, लोग कहते हैं कि सो लकी, सो ब्लेस्ड, मैंने पता नहीं यार, मेरे को तो कभी लगा नहीं। हर एक का अपना अपना एक लेमन होता है, वो मैं कभी और बात करेंगे, लेमन रेस लाइफ क्या है, कराता हूँ मैं लेमन रेस, लाया हूँ मैं आपके लिए, बट टाइम पे डिपेंड करेगा कितना करेंगे। सो देन आई शेयर्ड अ स्टोरी, यू मस्ट हैव हर्ड नंबर ऑफ टाइम्स, देयर वाज अ बॉय, ही वाज इन डीपली लव विद अ गर्ल। तो उस लड़की से उसने प्रपोज किया शादी के लिए, तो उसने कहा आई हैव ए कंडीशन। कहने का यस, कहने का आई वांट हार्ट ऑफ योर मदर। कहने का नॉट अ बिग डील, माय मदर हैज नेवर रिफ्यूज्ड, आई एम ए पैम्पर्ड चाइल्ड, कभी मना ही नहीं किया जीवन में किसी भी काम के लिए, और वो तो बेचारी सी इज अबाउट टू डाई, अनप्रोडक्टिव है, घर में पड़ी रहती है, तो दे देगी, कोई इशू नहीं है। तो वो जाता है अपनी मदर के पास, कहना आई वांट योर हार्ट, बेटा ले 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 ले, आई वांट टू सी यू हैप्पी। तो वो छुरा लेके उसको घुटता है, दिल लेके चलता है। सुना होगा हबीब पेंटर ने बड़ी अच्छी कव्वाली में गाया इसको। तो वो जाता है, तो ठोकर लगती है उसको, उसकी हार्ट से आवाज आती है, ओ आर यू ओके, आर यू कंफर्टेबल माय सन। नाउ वो जाके उसको दिल दे देता है लड़की को, नाउ लेट अस मैरी। उस लड़की का जवाब था वो रियली वंडरफुल, उसने कहा इफ यू कैन नॉट बी लॉयल टू योर मदर, हाउ यू कैन बी लॉयल टू मी। आई डोंट से कहीं भी रहो आप, वेयर एवर, बट जहां से है, आई हैव सर्टेन रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई फैमिली, फॉर माई कंट्री, फॉर माई नेशन। इफ यू कैन थिंक इन टू दैट डायरेक्शन, प्रॉब्लम्स तो है, रिसोर्सेज का भी इशू है, बहुत सारा है। रिसोर्सेज की बात करें, कितने लोग झारखंड से हैं, हाउ मेनी ऑफ यू आर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड है वहाँ पर शमीम, तो मैं उससे विंटर ब्रेक में गया था पिछली बार, तो मैं आई वॉज सरप्राइज, झारखंड में सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज अगर हमारे देश में है तो शायद झारखंड में है, am I right? झरिया में गया था, है ना, झरिया देखने गया उसके साथ, शमीम के साथ, बट आई वॉज सरप्राइज। फिर ऑब्जर्व किया मैंने, इसमें एक्शन चाहिए पर बहुत बड़े लेवल का एक्शन चाहिए, बट लुक एट द इकोनॉमी ऑफ द झारखंड, सॉरी टू से, है ना, बट झारखंड की बात करें तो आई एम फ्रॉम यूपी, दोनों भाई भाई हैं, वो आगे, हम लोग बीमारू स्टेट्स में हैं, वी आर वेरी प्राउड, डेमोग्राफर कहते हैं तो आई एम वेरी प्राउड कि हम बीमारू स्टेट से हैं। तो इकोनॉमी, जापान की बात करो आप, देखो हम लोग फ्रीडम फाइटिंग और ये हुआ स्ट्रगल, दोनों हम लोग सेम स्टेज में थे। और कंप्यूटर चिप्स भी अगर जाते हैं जापान के अंदर, वो सारे के सारे झारखंड से स्टिल भी उसका जाता है, बट इकोनॉमी में क्या कहाँ गड़बड़ है, क्यों ऐसा है? इज इट द एटीट्यूड विच मैटर्स और द रिसोर्सेज विच मैटर्स? कलाम साहब इज ए वंडरफुल एग्जाम्पल। क्या था, पढ़ाई के पैसे नहीं, बहन ने गहना रख के फीस दी 10th क्लास की, सो लॉन्ग स्टोरी, है ना। आई एम ग्रेट फैन ऑफ द कलाम साहब, उसके पास बात तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं, हमारे पास रोल मॉडल नहीं है,
मेरे बच्चे मेरी बात नहीं करते हैं, तो मैं कर क्या रहा हूं? Am I a role model for my students, for my own children even? रोल मॉडल वैक्यूम हो गया देश के अंदर। कलाम साहब के बाद एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलता। माय फादर वाज लकी, वो गांधी की बात करते थे, शास्त्री जी की बात करते थे, बहुत सारे लीडर्स थे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। नेवरदलेस, तो ये मैंने सोचा कि कुछ चल के यार कुछ करते हैं, अपने देश के लिए ही करते हैं। तो व्हेन आई डिसाइडेड बिकॉज ऑफ सर्टेन कंपल्शन कि आगरा में रहना है। आगरा इज नोन famous because of the Taj Mahal, you must have heard, but infamous because of the Lapka culture. What is this Lapka? Lapka culture, they are the touts. And for their own earning, रास्ते नहीं पता उनका, because कभी स्कूल तो गए नहीं आपकी तरह से। Auto drivers, taxi drivers, including guides, so they try to cheat to the tourist. एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इकोनॉमी ऑफ द आगरा एज वेल ऑफ कंट्री। आगरा कैन बी ए गुड, मतलब बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड, बट बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर्स, वो लॉस ऑफ इनकम हो रहा है। भाई इकोनॉमिक्स के अगर स्टूडेंट्स हैं, लेट अस सी हाउ टू बूस्ट अप। खाली हम सब बात करते हैं हंगर इंडेक्स में साहब ये पीछे आ गया, तो वो तो कोई बहुत बड़ा रिसर्च करा नहीं आपने, वो तो ऑलरेडी कहने हाँ सब कंफर्म किया। हमने भी स्टैट्स लगा के कंफर्म करा, ठीक है। हैप्पीनेस इंडेक्स, हाँ साहब ये तो है, ठीक कह रहे थे वो कोटलेवन साहब, है ना। तो वो मुझे कुछ जमा नहीं ना, प्लीज आई कैन बी कहीं कहीं गलत बोल जाता हूं, प्लीज excuse me. Then what can be done? तो लपका। फिर दूसरी बात है कि पूरा उनको डिफेम कर दिया। ऑटो ड्राइवर्स ही तो है बेचारे, स्कूल तो गए नहीं। फिर वो शराबी डायलॉग, शराबी मूवी का डायलॉग मुझे याद आया कि भैया नशे में कौन नहीं है, तो मुझे लगा कि लपका कौन नहीं है। मुझे बताओ यारो, मेरा कोई सीनियर एकदम आएगा, वाइस चांसलर साहब आ जाए, भाग के ऐसे छोड़ के भाई भागूंगा मैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। भाई हु इज इंपॉर्टेंट? माय कस्टमर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मी। वो तो मुझे जानता भी नहीं, बट कहीं कुछ फायदा हो जाएगा, देखो भाग के चाय भी लाऊंगा, भाग के। कोई जरा सा चीप पॉलिटिशियन आ जाए खादी का कुर्ता पजामा पहन के, भाई साहब भूल जाएंगे आप अपनी प्रोफेसरगिरी, मैं पीएचडी हूं, ये हूं, ऐसे घूमेंगे उसके आगे पीछे, पता नहीं एक आईएएस ऑफिसर। मैं भाई आई एम प्रोफेसर बाय चॉइस, मजबूरी में नहीं आया साहब, और कुछ काम नहीं मिला तो ये कर लूं। तो आई रेस्पेक्ट माय प्रोफेशन। मैं समझता हूं, मैं व्हाई शुड आई गो टू द कमिश्नर और द डीएम? टीचर्स आर द बैकबोन ऑफ द कंट्री। मेरे पास तो सोशल सर्विस करने का इतना मौका मिला है। तो बच्चे यार आजकल सबसे बड़ी बात ये होगी, मैडम कोई 5 मिनट आपकी बात नहीं सुनता। सुनता है क्या? कितने लोग मैरिड हैं? रेस्ट आर वेरी हैप्पी, तभी बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। आप भी शादीशुदा हैं? अरे सॉरी यार। तो आपको तो क्लास में बहुत बोलना चाहिए, क्योंकि मैं घर पे नहीं बोल पाता। तो 5 मिनट कोई बात नहीं सुनता आपकी, एंड इन योर क्लास 60 मिनट 70 मिनट भाई साहब सुन रहे हैं और ऐसे सोच रहे हैं कि पता नहीं। तो मुझे तो इसलिए प्रोफेशन सबसे अच्छा लगता है। एंड यू आर समटाइम्स पेड आल्सो। मुझे तो, मैं तो कभी कभी कहता हूँ भाई बहुत दिन से घर में नहीं बोल पाया, पैसा दे के जाता हूँ, मुझे इनवाइट करो। हाँ सुबह तो बहुत खुश हुए, वाइफ से कहा मैंने शाम को ही आऊंगा। 10 मिनट का लेक्चर सुना उनका, मैं तुरंत तैयार होके भाग गया। तो दिस इज कि मैंने कहा भाई लपका कौन नहीं है, व्हाई वी आर यूजिंग डेरोगेटरी टर्म्स फॉर दैट, दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग। और जब स्टेटमेंट देता है एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर, शहर में लपके बहुत हैं,
मैंने कहा भाई साहब ये तो आपकी जिम्मेदारी है, तो यू आर दी, मैं तो डायरेक्टर हूँ एक छोटे से कॉलेज का, वहां लॉ एंड ऑर्डर कोई प्रॉब्लम होती तो आई एम रेस्पॉन्सिबल, फेस नहीं मिला पाता, आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। बीइंग ए टीचर आई डिसाइडेड कि मैं कुछ काम करता हूं उस पर। आई टीच कल्चरल चेंज। मेरे पास कंसल्टेंसी भी थी हाइंस अलीगढ़, उस पर कल्चर चेंज। मैंने कहा बट टीचर्स हैव गॉट अ बैड नेम कि दे कैन ओनली राइट आर्टिकल्स, दे कैन ओनली टॉक इन अ क्लासरूम, तो आउट ऑफ क्लास ये कुछ काम नहीं करते, मैंने देखते हैं। अब हमने क्या करा, इस पे पूरा स्टेप बाय स्टेप रिसर्च का मैं स्टेप बताऊंगा, ठीक है। तो उसमें हमने एक आइटम पढ़ा, एक नजीर ऑटो ड्राइवर, उसने 1.5 लाख रुपया एक लड़की का जो ग्वालियर से आई थी रिटर्न किया। छोटी सी न्यूज है, जैसे हमारी कंट्री में होता है, कोई गलत न्यूज होगी तो ऐसे एक ऑटो ड्राइवर्स ने पर्स छीन लिया, वो फ्रंट पेज, मैंने फ्रंट पेज की न्यूज है क्या? उसका वो छोटा था, मैंने वो इमीडिएटली पढ़ा। और हम लोग एमबीए के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं मोटिवेशन, लीडरशिप। बेईमानी लगती है वेरी ऑनेस्टली। कभी अब्राहम मास्लो की थ्योरी पढ़ा देंगे, कभी हर्जबर्ग की पढ़ा देंगे। भाई साहब उसने कहा कि ये थ्योरी बेकार है, अब इसकी आगे ये पढ़ाओ ये पढ़ा देते हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में चलता है वही पढ़ा देते हैं हम लोग, ठीक है। ऑल एशियन स्कूल्स वो सब में यही चलता है। तो मैंने कहा यार 15 अगस्त का दिन था, तो 15 अगस्त को मैंने कहा डायरेक्टर को भाषण देना मेरे को नहीं अच्छा लगता, सब मजबूरी में तो सुनते हैं मेरा भाषण, उनका बस चले तो कह रहे इधर आ यार तो घर में जाना है यार, बच्चे रो रहे हैं तू अपना हमारा गांधी जी ने ये करा, जवाहरलाल, अबे भाई साहब आपने क्या करा? सुभाष चंद्र बोस, हमारा देश ऐसा था, भाई तेने क्या करा ये बता दे मेरे को। मैंने तो कुछ नहीं किया। और उतना ज्ञान तो आजकल सबके पास है, गूगल से ले लो, नहीं है तो चैट जीपीटी, आजकल कहाँ ज्ञान की जरूरत है रही। तो मेरे को बड़ी, बिलीव मी व्हाट आई विल टॉक विद यू विद ऑनेस्टी, मेरे को बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है किसी को। यहाँ आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस, यू हैव योर ओन। आपको जब मौका मिलेगा तो आप भी बताएंगे मुझे, है ना, पर दूंगा नहीं आज मैं, है ना। माइक आ गया तो माइक टीचर बड़ी मुश्किल से छोड़ता है। तो मैंने कहा 15 अगस्त को फोर्सफुली में कोई काम नहीं करता, लेकिन डायरेक्टर कुछ भी करता है हो ही जाता है फोर्सफुली। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, नहीं जिसका मन है। मैंने कुछ फैकल्टी इफ दे वांट टू कम अलोंग विद मी दे कैन ज्वाइन। मैं गया नजीर ऑटो ड्राइवर को, मैंने उसको सम्मानित किया और मैंने उससे ये कहा कि आई वांट 10 ऑटो ड्राइवर्स लाइक यू सो दैट आई कैन टॉक। 10 की जगह 20 आ गए। मैंने कहा 4 से 5 बजे तक आई विल टॉक इन ए अनकॉन्फ्रेंसिंग वे, नो वीआईपी सिंड्रोम, कोई चेयर नहीं आएगी, कोई टेबल नहीं आएगा, कोई पानी नहीं आएगा, कोई माला नहीं आएगी, कोई चाय नहीं आएगी। 4 का मतलब 4, कमिटमेंट इज ए कमिटमेंट। क्योंकि इंडियन टाइम बहुत आराम से कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है 12 बजे शार्प, यकीब एंड ऑल कोऑर्डिनेटर्स, बहुत बढ़िया है ना। तो मैं बल्कि आई वाज वरीड, क्योंकि मैं भी टाइम का बहुत पंक्चुअल है कि टाइम से ना पहुंच पाऊं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, टेंशन होने लगा था मेरे को। तो स्टार्ट किया। अब मैं देखता था कि भाई ये जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, ये कि जब हमारी क्लास होती है 1 घंटे की, तो 50 मिनट में घड़ी देखने लगते हैं बच्चे। स्मार्ट टीचर सब समझता है भाई, अगर आप घड़ी देखोगे मैं समझ जाऊंगा कि दिस इज द टाइम, तो देखना मत प्लीज, है ना। या मोबाइल देखने लगे या बात करने लगे तो स्मार्ट टीचर के लिए फीडबैक है, इट इज अ टाइम फॉर ब्रेक और चेंज योर मेथोलॉजी, मजा नहीं आ रहा, ठीक है। तो दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपेरिमेंट। देन आई डिजाइन a course curriculum
एंड कोर्स करिकुलम, क्योंकि अनकॉन्फ्रेंसिंग वे कौन सी टेक्नोलॉजी एजुकेशन की आप यूज करेंगे कम्युनिकेशन की, तो मैंने मदारी टेक्नोलॉजी, मदारी से सीखा मदारी कैसे मजमा लगाता है, भाई और बहनों, मेस्मराइज कर देगा, हिप्नोटाइज कर देगा। तो दैट वाज द कम्युनिकेशन आर्ट, उससे सीखे। तो वही मैंने यूज किया खड़े होके। फॉरगेट अबाउट प्रोफेसर है, सब इसके बिना नहीं करूंगा, और सब ये तो चाहिए ही चाहिए मेरे को प्रोजेक्टर, है ना, ये चाहिए, 4 मेरे साथ चलने वाले हों, थोड़ा कोई बटन दबाए, कोई बैग लेके चले, है ना, आदतें खराब होगी प्रोफेसर से। तो हमने जब वो करा तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे। 10 दिन का हमने कोर्स करिकुलम बनाया। हमने बात किया कि भाई दे शुड बी, हमने बात किया ऑनेस्टी। ऑनेस्टी से पहला उनके दिमाग में बिठाना था, भैया देखो, सोने की मुर्गी का अंडा आपको एक दिन चाहिए या रोज रोज चाहिए? व्हाट विल बी, सबको लगता है कि मेरे से क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट कैन आई डू। एंड सबसे बड़ा चीज मैंने अपने स्टूडेंट्स को ले गया, भैया इससे नजीर से सीखो ना मोटिवेशन। ये क्यों, ये तो पुअर चैप है, लार्ज फैमिली है, ऋण है उसके ऊपर, ये खुदा का बंदा, इसने 1.5 लाख रुपया, यहाँ तो भाई की 100 नोट मिल जाए तो मेरे को भी मतलब पैर रख के खड़ा हो जाऊंगा। मैं करता नहीं हूं ऐसा। कि ये निकले, ये कहीं टीए यार थोड़ा सा और बढ़ जाए किसी भी तरीके से। बट व्हाट इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन? इसको तो पढ़ाना चाहिए क्लास के अंदर, उस पर स्टडी करनी चाहिए, उसका घर जाना चाहिए। मैं इसके घर गया, वो मेरे घर में आते हैं, मेरे बच्चे, उसके मेरे बहुत अच्छी दोस्ती होगी उससे। नॉट ओनली वन एग्जाम्पल। फिर हमने जो उसमें कंपोनेंट्स यूज करे, विच आई विल टॉक विद द हेल्प ऑफ द पीपीटी, है ना। तो अभी हाउ मच टाइम वी हैव अकीब? 30 मिनट बस। पर अभी तो 2 है ना। तो आगरा, they are the auto drivers, taxi driver, they are treated badly by the police personnel, bureaucrats and the public also. ऑटो वाला है, भाग यहाँ से, हट जा यहाँ से यहाँ तक भी देखा मैंने, बड़ी प्रॉब्लम। They have low self-esteem, no recognition for their services. Because of the low self-esteem and identity crisis, they are sometimes involved in the petty crimes like chain snatching, stealing goods of the passenger. Though they may be themselves responsible, hence we initiated training program with how to live with dignity. They have also right. Respect yourself if you need respect from others. Look at this Nazir, auto drivers. On 15th August 2014, we initiated, my wife, Dr. Anju Jain, Professor of Economics in RBS College. We both went there. Then we said, कि लपका, हमने कहा कि no, the name of the project was लपका नहीं आपका, अतिथि देवो भव. I'm not लपका, I'm आपका. कितना मनी थ्रू दिस आमिर खान स्पेंड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अरबों में हुआ गया होगा. अतिथि देवो भव है. हार्डली देयर इज इम्पैक्ट. कोई रिसर्च करा होगा, नहीं करा होगा, मुझे नहीं पता. इज देयर एनी इम्पैक्ट इन आवर कंट्री? राजकुमार कहता था कि वे हम उस देश के वासी हैं, जो मेहमान जो हो तो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है. अब तो कहते हैं मेहमान जो हमारा होता है जान का प्यारा होता है. अतिथि कब जाओगे? Gone are the days. What is wrong in our culture? Let us see. लपका टू आपका, this was the newspaper coverage जो हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते थे, पर उनको अच्छा लग रहा था, वो कर रहे थे. Appreciative inquiry is a wonderful tool for action research. ठीक है, एक्शन रिसर्च में. टेक्निकल मैं इस पे बात नहीं करना चाह रहा हूं अभी. ठीक है, if you want I can explain what is appreciative inquiry. So what are the training tools? Appreciative inquiry, juggler technology,
Madari, unconferencing way. Appreciative inquiry में what are the components which we have used? Positive psychology, Pygmalion effect, creative visualization, enhancing self-esteem through appreciation and recognition in media. Pygmalion effect, I hope you know. Is there anyone from literature? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो नोवेल है पिग्मैलियन इफेक्ट, यू नो अबाउट इट? I'll talk later, it will take time, है ना? चलो इस पे पिग्मैलियन इफेक्ट बिकॉज यू कैन यूज इन योर क्लासरूम. पिग्मैलियन इफेक्ट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नोवेल है, लिटरेचर से मैंने लिया है. तो यू शुड बी ओपन फॉर रिसर्च वर्क, डोंट रेस्ट्रिक्ट कि आई एम सोशियोलॉजी साइकोलॉजी. नो, बी ओपन फॉर एवरीथिंग. ठीक है. तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का पिग्मैलियन नॉवेल ये था कि एक लेडी थी, लड़की थी, वो मेड सर्वेंट टाइप की फूल लेके आती थी. तो उसने उसमें ट्रस्ट स्टार्ट कर दिया. यू कैन डू, यू कैन डू, यू कैन डू. एंड वन डे शी वाज लुकिंग वेरी स्मार्ट, वेरी ब्यूटीफुल. उसको एक स्टैचू से भी, ग्रीक उसमें जो लिया है पिग्मैलियन, तो एक स्टैचू को वो एकदम लाइव हो जाती थी. वो स्टैचू इतनी सुंदर बनाई इसने. तो लाइक दिस यू कैन यूज इन योर फैमिली विद योर स्टूडेंट. बहुत एक्सपेरिमेंट हुए साइकोलॉजी में, है ना, विद योर चिल्ड्रन आल्सो. व्हेन यू जस्ट पैट ऑन द बैक, कैन यू कैन डू एंड फील यस दे कैन डू. क्लास में जो ऑर्डिनरी, जो मैनेजमेंट की परिभाषा है, टू टेक द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क फ्रॉम द ऑर्डिनरी पर्सन. तब तो आपका कमाल एज ए टीचर, एज ए लीडर. अदरवाइज you are taking ordinary work from the extraordinary, and everybody can do really wonders. बहुत एग्जाम्पल्स हैं, कभी बाद में बात करेंगे उनसे. तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, तो उनको ये दिखाना कि व्हाट, हाउ यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सिटी. यू आर द सिटी एम्बेसडर. सबसे पहले तो आपको कोई भी टूरिस्ट आता है, वो आपसे इंटरेक्ट करते हैं. यू हैव टू बी डिसेंट, कल्चर्ड, and how you can play a role in Indian economy, Indian culture. वो उनको जब बार बार न्यूरो लिंग्विस्टिक साइकोलॉजी के थ्रू जब बताया जाएगा, yes I can do, वो कॉन्फिडेंस हमने उनमें पैदा किया. That was the action. We could see the results. Enhancing self-esteem through appreciation, and उनको recognition in media is very very important for them. क्योंकि या तो उनकी खबरें आती थी कि चेन छीन ली, मार पिटाई कर दी, बदतमीजी कर दी, बट ऐसा कभी उनके साथ नहीं आता था. तो वो हमने रिकॉग्निशन शुरू कर दिया उनका. डे फ्राइडे, वाई फ्राइडे? यू हैव टू प्लान बिकॉज ताजमहल इज क्लोज ऑन फ्राइडे, सो देयर इज नो लॉस ऑफ देयर इकोनॉमी. वेन्यू रखा नूरी मस्जिद के सामने. अभी कभी आप आगरा जाएं, कैंट स्टेशन पे, वहां खड़े होकर हम लोग देखें. यू कैन सी थ्रू द पिक्चर आल्सो. दीज आर द ऑल मीडिया कवरेज. इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. वो घर में जब ले जाते थे, दे फील, बच्चे प्राउड ऑफ फादर. कितना अच्छा लगता था. नूर मोहम्मद, माय गॉड, छाता था, हीरो ऑफ द डे. होर्डिंग्स हमने लगवाते थे, सिटी हीरोज, एप्रिसिएशन. बड़ी बड़ी मैं मीटिंग्स में कमिश्नर, ये मैंने कहा नो, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर मी, नॉट यू. एंड हमारा एक सिद्धांत था इस प्रोजेक्ट का, नो वन इज वीआईपी एक्सेप्ट अ गुड पर्सन, अ गुड ह्यूमन बीइंग, ऑनेस्ट पर्सन इज वीआईपी फॉर आवर. लाइक नजीर, चाहे वो ऑटो चला रहा है, चाहे सरकार चला रहा है, इफ इज नॉट अ गुड पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, I will not talk to them. I am a teacher. मुझे कुछ लेना देना नहीं है. सैलरी ठीक ठाक मिलती है, that's all. My wife is also in job. मस्त रहते हैं. ऑटो चालक चांद की बहादुरी को किया सलाम. ठीक है. लपके और गाइड बने पर्यटक मित्र. मीडिया को बहुत अच्छा लगने लगा था. Now you can see them in the uniform. हम इनसे बात करने लगे कि भैया यूनिफॉर्म का बड़ा इंपैक्ट आता है ना? वो पैसा कितना भी है, वो आएंगे बेचारे.
ऐसा लगता है हमारा देश कितना गरीब, इतना गरीब नहीं है जितना दिखाई देता है। चाइना में क्या करा उन्होंने, नुक्कड़ ट्रेनिंग दिया जब ओलंपिक हुआ ना, तो हाउ टू ड्रेस अप, सफाई का। वो ऐसे कोई सफाई पसंद नहीं है, देख तो रहे कोरोना नया वायरस ये, लेकिन उनको लगा कि टूरिज्म को बढ़ाना है, इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो सफाई पसंद लोग होते हैं बाहर से, तो सफाई, हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्फ। तो अभी आप, आई हैव बीन इन चाइना, तो मैं देखता हूँ वहां कितना भी गरीब हो लेकिन कपड़े वपड़े बड़े सेट पहन के घूमता है। हमारे यहाँ कितना भी कमा रहा हो कपड़े, उसको भाई साहब आदत ही है उसकी, है ना। तो हमने कहा यूनिफॉर्म, बट देन अगेन द इशू, यूनिफॉर्म इज नॉट ए प्रायोरिटी फॉर देम, ड्रेस इज नॉट ए प्रायोरिटी फॉर देम। उनके लिए तो प्रायोरिटी है बेचारों के शाम को एक कौवा आ जाए। आई एम टेलिंग अदर साइड आल्सो, खेलने के लिए, जुआ खेलने के लिए, पैनी खाने के लिए, वो सब काम में इन्वॉल्व थे। आई विल शेयर विद यू वेरी गुड एग्जांपल। एक कलीम शकील ऑटो ड्राइवर सुबह से ही शराब पीता था राजा मंडी स्टेशन पे। मैं जब उसको कहा, मेरी वाइफ मेरे साथियों से देख के डर गई, यहाँ पान मसाला गले में वो डाल के, इनसे कैसे बात, मैंने यही तो हमारे कस्टमर हैं, हम अकीब जैसे लोगों को पढ़ाएंगे तो फिर क्या बड़ा काम कर रहे हो, तो बेचारा पहले डिसिप्लिन है। भाग के बैग ला रहा है, ये जा रहा है, कहां से ट्रेनिंग पड़ी मुझे नहीं पता। Who is my customer? That reminds me a very good story of a मुनि। मुनि महाराज ने एक कैंप लगाया, एक बच्चे ने घड़ी चुराया। दिस इज द रियल एचआर। एचआर जब पढ़ाता हूं मैं ये बताता हूं। एक बच्चे ने घड़ी चुरा लिया, घड़ी चुरा लिया, बच्चों ने शिकायत करी, सब ये एक्शन होना चाहिए, इसे बाहर निकाल देना चाहिए। टीचर बेचारा, ठीक है जी देखेंगे, कोई एक्शन नहीं हुआ, दोबारा शिकायत, दोबारा, फिर सारे बच्चों ने डिसाइड किया, सर इफ देयर विल बी नो एक्शन, हम लोग इसका बायकॉट कर देंगे, हम घर जाएंगे। उसने हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता से किया, यू ऑल कैन गो बैक बिकॉज यू आर ऑल फ्रॉम ए गुड फैमिली, डिसेंट फैमिली, कल्चर्ड है। इस बेचारे को तो एजुकेशन की जरूरत है, ही इज ओनली माई रियल कस्टमर। तो मेरा तो रियल कस्टमर तो शकील है, बिलीव मी। अब उसको बताऊंगा मैं आगे स्टोरी उसकी, इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है उस बंदे के अंदर, शराब भी छोड़ दी, गुटखा छोड़ दिया, और इतना हेल्प कर रहा है। मैं उसको मना करता हूं इतना मत कर भाई। नीडी लोगों के घर घर खाना रोज पहुंचाना, कोविड के दौरान उस पर मैंने लिखा शकील भाईजान, स्टोरी लिखी मैंने। इतना ट्रांसफॉर्मेशन जब मैं देखता हूं उसके अंदर, तो मेरे को लगता है, और ये सभी इस तरह के काम में, दे आर नॉट अर्निंग इज ओके, बट वो है कि कहां पैसा खर्च हो रहा। पुलिस वाले खींच लेते हैं जब शाम को शराब पी के निकलते हैं, है ना, पुलिस वाले परेशान करते हैं, उनको लगता है अच्छी मुर्गी मिल गई, वो अपनी मुर्गी खाते हैं, वो अपना मुर्गा खाते हैं, है ना। तो लाइक दिस हमने कहा कि इसको चलो स्पॉन्सर करते हैं। बीइंग ए डायरेक्टर आई हैव सर्टेन प्रिविलेज, तो मैंने कॉलेज से, नाउ यू कैन सी देम इनटू यूनिफॉर्म, तो दे लुक जस्ट लाइक कोई किसी पायलट। मैंने कहा यू आर द पायलट नाउ, स्माइलिंग, सारा का सारा वो कंसेप्ट ऑफ द एयर होस्टेस की जो ट्रेनिंग दी जाती है वैसी, स्माइलिंग, ऑनेस्टी, गुड बिहेवियर, वो सारा का सारा। इसका इंपैक्ट देखो, अगर आपके बिजनेस पे इंपैक्ट आ रहा, सिटी में इंपैक्ट आ रहा, तो आप यू कैन सी। ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं राजा मंडी के सामने, एक डस्टबिन टाइप का था, कचरा घर बनाया हुआ था, पार्क था वैसे। इन लोगों ने सबने मिलके मेहनत करके, नाउ इट लुक्स लाइक ए ब्यूटीफुल पार्क। भी सलमा मैम है यहाँ पर, डीन है एएमयू की, वो आई उसको देखने के लिए, हमारी अच्छी फ्रेंड है, तो वो भी आती रहती थी प्रोजेक्ट को। कई लोगों ने ऐसे कहा कि वी वांट टू सी, मैंने कई बार यहाँ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में कहा कैन वी इनिशिएट सम प्रोजेक्ट इन अलीगढ़ आल्सो। तो 4 बजे के बाद कई प्रोफेसर दे आर लाइकली टू मीट मी नाउ फॉर डिस्कसिंग कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो दिस वाज कन्वर्टेड एज ए ब्यूटीफुल पार्क। अगेन दोबारा क्योंकि प्रोजेक्ट बन रहा है तो वहां थोड़ा चेंज हो गया है। कल आप जाओ वहां कहेंगे सर आप तो झूठ बोलते हैं, तो इसलिए बताना जरूरी है मेरा, है ना।
और टाइम बताते रहना भाई मेरे को, हाउ मच? ओके, सो आई विल नॉट गो बाय दिस। ये ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हमने 10 दिन का बनाया था जो एक्सटेंड करते गए हम लोग, ठीक है। नाउ हर मीटिंग हमारी स्टार्ट होती है विद द मंत्रा, वी कॉल इट LTA मंत्रा, लपका टू आपका। नाउ नेम इज चेंज, सोल्जर्स ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज। तो उसमें क्या करते हैं, यू कैन ऑल्सो डू विद मी, ये दिस इज नॉट माइंड, ये रेकी के जो फाउंडर्स हैं उनकी थ्योरी पर बेस है, थोड़ा मैंने इसमें चेंज किया, एडिट किया है, कस्टमाइज किया है ना। मैं आज गुस्सा त्याग दूंगा, इंग्लिश और हिंदी में है, ठीक है। मैं आज चिंता, कैन यू रिपीट विद मी? मैं आज गुस्सा त्याग दूंगा, आई विल लेट गो माई एंगर फॉर यू, है ना। मैं आज चिंता मुक्त रहूंगा, मैं आज सभी के प्रति आभार का भाव रखूंगा, मैं आज अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी से करूंगा, मैं आज अपने कार्य क्षेत्र को साफ सुथरा रखूंगा, मैं आज संपूर्ण जीवों हेतु प्रेम तथा दया का भाव रखूंगा, मैं आज अनुशासित रहूंगा। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाई आज, व्हाई टुडे? I will let go my anger today, I will not worry today. Why today? This is again based on the philosophy of the बनिया। बनिए की दुकान पे आप जाओ, वहां लिखा होता है कि आज नगर, भाई साहब हम जैसा बेवकूफ तो कल पहुंच जाता है, उन्हें पढ़ो उसको तो बनिया बेवकूफ बना रहा है हमारा। आई दूसरा शॉर्ट कमिटमेंट करके देखूं ना, आज मैं करता हूं चलो पूरे दिन, या आज मैं कहता हूं आज चिंता नहीं करूंगा यार, कल की फिर देख लूंगा। आज छोटा सा कमिटमेंट एंड इंट्रोस्पेक्ट, मेक ए सेल्फ ऑडिट, कितनी बार किया कितनी बार नहीं किया, छोटे कमिटमेंट करके देख लेते हैं। देन अगेन फिलॉसफी, व्हाई, दिस इज अगेन टेकन फ्रॉम द न्यूरो लिंग्विस्टिक साइकोलॉजी, ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द साइकोलॉजी, जिसे कहते हैं इको, गूंज। व्हेन वी टॉक, द वे जिस तरीके के आप सबकॉन्शियस माइंड से बात करते हैं, उस तरीके के रिजल्ट्स आपको मिलने लगते हैं। दिस इज अ वेरी गुड स्टोरी, ठीक है। एक बच्चा फादर के साथ जंगल में जाता है, वो फिसल जाता है, गड्ढे में गिरता है, तो वो चिल्लाता है, तो उधर से भी चिल्लाने की आवाज आती है, उन्हें पापा मैं मरा, उधर से भी आवाज मैं मरा। तो फिर फादर ने कहा बेटा अब ये कहे, कहने का पापा कि मैं बहादुर बच्चा हूं, तो उसने कहा मैं बहादुर बच्चा, उधर से भी वही आवाज। व्हाट इज दिस फादर? दिस इज दिस पावर ऑफ द इको, द वे यू स्पीक। हम ये बहुत जोर जोर से अभी जेल में जाते हैं, नारे लगवाते हैं उनसे, मैं कामयाब हूं कमजोर नहीं, मैं बनाऊंगा बिगाड़ूंगा नहीं, मैं बंधु हूं, बंदी नहीं, मैं बंधु हूं। इट हैज गॉट वंडरफुल इफेक्ट, ठीक है। तो ये प्रेयर्स हम लोग शुरू कराते थे, और सबको हमने दिया हुआ है कि अपनी जेब में रखो, सब अपना प्रेयर सुबह सुबह, मैं आज, उसका भी बड़ा इंपैक्ट आता था। अच्छा, वो हमसे जुड़ेंगे क्यों? वी डोंट हैव एनी पॉलिटिकल पावर, फाइनेंशियल पावर। तो 3 कमिटमेंट हमने कहा कि भाई देखिए, हमसे ये कोई उम्मीद मत करना कि हम आपको पैसे से मदद करेंगे या कभी फंस गए। तो कहते थे एजुकेशन काउंसलिंग, वी आर इनटू एजुकेशन। हमने टारगेट बनाया, उनके बच्चों को MBA करना है, इंजीनियरिंग करना है, MBBS करना है, IAS, PCS, हम पूरा आपको मदद करेंगे, टैलेंट हंटिंग से लेके आपका बच्चा क्या कर सकता है। और बहुत सारे बच्चे, अभी काशिम हमारे यहाँ जिसने पूरा मैच कराया, दिखाऊंगा, वंडरफुल बॉय, ही वाज he is a son of an auto driver from a very poor family,
वो उसने तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नहीं पता था उसका। एंड फर्स्ट सेमेस्टर में ही वाज ए वेरी पुअर स्टूडेंट। टीचर कहने लगे सर ये कैसे पास होगा, इंग्लिश में वेरी पुअर। अभी सब तारीफ करने लगे, मैंने कहा अब क्या हो गया भाई इसको। तो ऐसे कई ऑटो ड्राइवर्स के बच्चे, मयंक, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहे, कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, उनको टारगेट दिखाई देने लगा। हमने पॉजिटिव स्टोरी शेयर किया, बैंगलोर में ऑटो ड्राइवर्स का बच्चा आईएएस हो गया। तो रिसोर्सेस हमने बताया कि नॉट ए इश्यू, अगेन एंड दिस इज अ फैक्ट नॉट ए थ्योरी, कि गॉड उनको ही हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करना चाहते हैं। इट्स नॉट ए थ्योरी, इट इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल। देन अगेन what we can do, counseling, medical counseling and assistance, because we have good network with the doctors, and लब के सबसे बड़े आगरा में तो स्पेशली डॉक्टर्स हो गए, पता ही नहीं चल रहा भाई साहब you are in a right hand or not, so we just help them, just go। आप सिर्फ ये दिखाइए कि I am a volunteer of the SOS, few good doctors of the Agra will treat you gracefully without fees। वो उनका बड़ा एसोसिएशन, उनको लगता है, वो जाते कहते, कुछ लोग मिसयूज भी करते हैं, एसओएस से हो तो वो कंपाउंडर तो दे हैव देयर ओन लैंग्वेज, तो उनसे साथ कॉन्फ्लिक्ट आता है, एसओएस से तो क्या प्रधानमंत्री है। फिर उनको समझाते हैं। तो ये डॉक्टर्स उनको बहुत प्रायोरिटी के साथ। देन अगेन लीगल काउंसलिंग, इफ दे आर ऑनेस्ट। सो मेनी टाइम्स इट हैपेंड, वहां आरटीओ ने कहा कहने लाइसेंस रिन्यू होना है, एंड ही आस्क्ड प्राइस ऑफ 40,000 रुपीज। तो कमिश्नर को तुरंत मैंने फोन किया, प्रदीप भटनागर, ही वाज अ गुड मैन, शुरू में स्टार्टिंग में इशू हो गया था। मैंने सर ऑनेस्टली डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम ओनली। आरटीओ को बुला के बड़ी क्लास ली, एंड ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट इनका सबका। तो लीगल कहीं फंस जाते हैं किसी भी इशू में अगर इफ दे आर ऑनेस्ट, क्योंकि इस देश में है ना ऑनेस्ट लोग ज्यादा फंसते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। Okay, then it's a long story. What happened कि we were talking, we walked the talk वाली बात in a Amar hotel with the all auto drivers, हेल्थ इशू पे बात कर रहे थे हम लोग कि भाई आप गुटखा खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, और हमारे नेशनल हीरो शाहरुख खान, अक्षय कुमार ये सब ऐसे प्रमोट कर रहे हैं जैसे सुबह सुबह अपने बच्चों को कहते बेटा बहुत अच्छी चीजें खा ले। हम उन्हें हीरो कह रहे, बताइए। अक्षय कुमार सब दुनिया भर के, अजय देवगन। एंड एज इट इज अगेन ए प्रॉब्लम फॉर द रिसर्च वर्क, एक्शन रिसर्च। जैसे उड़ता पंजाब है तो थूकता यूपी है, और आगरा तो बहुत ही ज्यादा है। मैंने कहा अच्छा चलो तेरे को प्रॉब्लम हो, इससे मेरे को भी प्रॉब्लम हो रही। कोरोना में देखा ना वो धूल में उड़ के फिर आपका इट कम बैक टू यू आल्सो। वी वर जस्ट टॉकिंग, तो एक ऑटो ड्राइवर राजेश शर्मा कहे सर आई हैव अ प्रॉब्लम। मैंने मर गए यार, अभी कहेगा टीचर आर ओनली गुड फॉर द लेक्चर। तो मैंने इमीडिएटली कहा, एसएसपी बैठे हुए थे उस टाइम, मैं तो बुलाता नहीं था पर समबडी इनवाइटेड हिम। मैंने सर मुझे तो जाना पड़ेगा, मैं जा, कहना ओके ओके। उसके मैंने गाड़ी ड्राइवर से कहा यू गो बैक, मैं आ रहा हूँ। उसके ऑटो में बैठ के डॉक्टर नरेंद्र देव उसके यहाँ पहुंचा। उसने कहा इमीडिएट इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा नवीन। मैंने यार कितना खर्चा होगा, कहने 1.5 लाख। मैं कर यार, ऊपर वाला कुछ ना कुछ करेगा। 25,000 रुपये मैंने इसको इमीडिएटली जमा कराया। नहीं गो एट, एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल example of the networking. What we talk in IIM Ahmedabad or Harvard Business Schools. And if you want to be successful in your career and life, develop a good network like Professor Khan. Learn the art. How to develop a network. वो ये जो सोशल मीडिया का जो है ना, दीपावली विश कर दिया, ईद विश कर दिया, इतनी लाइकिंग, इतनी होनी, that will never work. वो तो पंचतंत्र की कहानी से ही सीखना पड़ेगा, वो मैनेजमेंट। जंगल में शेर था, शेर के ऊपर चूहा कूदा,
और उसने कहा मैं खा जाऊंगा, सर मुझे माफ कर दो, शायद मैं काम आ सकूं। यू रिमेंबर दैट स्टोरी? ठीक है। तो मैंने कहा 150 ऑटो ड्राइवर्स हमारे पास उस टाइम हो गए थे। मैंने कहा आई विल टेक केयर ऑफ हिज मेडिकल एक्सपेंसेस एंड मेडिकल बेस्ट डॉक्टर्स, बट इसके बच्चे भीख ना मांगने लगे 3 महीने तक, ही विल नॉट बी एबल टू ड्राइव दी ऑटो। पुष्पांजलि हॉस्पिटल में इतना बढ़िया नेटवर्क का इन्होंने किया। वो कह रहा है यार ये वीआईपी कौन है, सारे यूनिफॉर्म में, सुबह से 150 के 150 लोग। उन्होंने अपना आप रोटेशन बनाया, इसके बच्चों को स्कूल छोड़ के आते थे, राशन पहुंचा के आते थे, ब्लड का इंतजाम करते थे। मेरे पास तो टाइम इतना नहीं होता था। मैंने कहा आई विल अरेंज ऑल द फाइनेंसेस। एंड व्हेन प्रोफेसर खान वाज टॉकिंग इन द मॉर्निंग टुडे, व्हेन यू हैव अ गुड इंटेंशन, तो डायलॉग है ना चक दे इंडिया का, शाहरुख खान का, जीतने के लिए ताकत की नहीं, नियत की जरूरत होती है। यस, इट इज अ फैक्ट, नियत की जरूरत है। ही कुड सर्वाइव। कैंसर का पेशेंट सर्वाइव कर रहा बहुत बड़ी बात है। थोड़े दिन बाद फोन आता है, नवीन कुछ मैंने सोचा अब कहेगा कि बाकी के पैसे दो। नवीन कुछ पैसे बच गए, वापस ले जाना। मैंने पैसे बच गए यार, 25,000 में थे। माई ब्रदर वॉज पोस्टेड देयर एज ए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। उसने भी कहा कि नवीन टेंशन में है, तो अगले दिन आए, कहने कर ले यार तेरे पेशेंट की किस्मत बहुत अच्छी है। 85,000 रुपीज उसने मेरे को दिया। मैंने कहा भाई साहब आपने भी शुरू कर दिया क्या ऊपर नीचे का काम? कह रहे नहीं यार, मैं कभी मंदिर के नाम के पैसे निकालता हूं पर देता नहीं, जस्ट फॉर द नीडी, व्हाट ही वाज टॉकिंग इन द मॉर्निंग। नीडी लोगों के लिए, तेरे इससे बड़ी नीड किसकी है? somehow just to cut short this case study, तो हमारे पास बड़ा सरप्लस में पैसा आ गया। अब क्या करा जाए, वो बच भी गया, उसके मैंने मेडिसिन का भी दे दिया, उसकी लड़की की शादी होनी थी वहां भी दे दिया। अब ये कहना कि बहुत आसान है कि भाई तंबाकू खाना छोड़ दो, है ना? बहुत आसान काम है। तो वही गांधी जी के पास गए, एक मदर, कहने का मेरा बच्चा बहुत खाता है मिठाई, इसको समझाओ। उन्होंने कहा 10 दिन बाद जाना। 10 दिन बाद आता है तो कहता है बेटा मिठाई खाना छोड़ दो। कहने का तो पहले भी कह सकते थे। तो कह रहे कि नहीं पहले मैं भी खाता था, देख तो लूं। तो देन वाइफ थॉट कि क्या करा जाए, एडिक्शन है, साइकोलॉजी में पढ़ाते हैं, रिप्लेसमेंट कैसे करा जाए, कैसे किया जाए। तो हमने ये विकल्प बनवाया, ये आयुर्वेदिक है, अभी मेरी गाड़ी में रखा है, किसी को जरूरत है, मैं थोड़ा सेल्समैन का भी काम करता हूँ। जहां जाता हूँ अपना अपना, इतने पैसे देते नहीं मेरे को, है ना। लगा दोस्तों को क्या पैसे देने, तो मैं ऐसे अपना थोड़ा सा कुछ कर लेता हूँ। तो 5 रुपए का है, वो मेरी गाड़ी में रखा है, मेरे ड्राइवर को यू कैन कॉन्टैक्ट। अभी तो मैं अपनी किताब भी बेचूंगा थोड़ी देर में। तो वंडरफुल इफेक्ट, अगेन प्लेसिबो इफेक्ट, आयुर्वेदिक है। देन फिर ये सोचा कि हम लोग कहते हैं ये खाते क्यों हैं, डायग्नोसिस करो प्रॉपर। ये भूख को मिटाने के लिए खाते हैं बेचारे, हमारी तरह से नहीं है, खान साहब की तरह से लंच आ रहा घर से तो जाके, तो वो क्या बेड़ी कचौड़ी, या फिर ये ड्राइवर के मुंह में हमेशा रखा रहेगा। तो फिर हमने वहां भोजनालय, क्योंकि पैसा बच गया था, लॉन्ग स्टोरी उसकी बात करेंगे, वो भी एक एक्शन रिसर्च का पार्ट बन गया, वो हमने स्टार्ट किया। तो ये विकल्प इज गोइंग वेल, मोर देन अभी तक करीब 2000 लोगों ने छोड़ चुका है। मैं गाड़ी में रखता हूँ कि पेट्रोल भरवा रहा है तो टाइम पास हो जाता है, भाई साहब ये क्या कर रहे हो, अच्छा मेरा फायदा भी हो जाता है। कल आरटीओ ऑफिस में गया तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था, वो खा रहा था, तो मैंने अरे क्या कर रहा है ये ले, तो उसने मेरे से कम पैसे लिए। बनिया हूं ना भाई, कास्ट तो कर लेता हूं अपना। Now you can see the genesis of the Bhojanalaya. Low cost pay at the cost of 10 rupees. Then again inspired by the philosophy of Vivekanand कि गरीब का धर्म, भूखे का धर्म तो रोटी है, उसे कोई मतलब नहीं है मंदिर मस्जिद से, उसे तो रोटी चाहिए। When we talk about the economics, in economics, global hunger index, तो यार मैं नॉलेज शेयर करके कर क्या रहा हूं, और वी डिस्कस एज एकेडमिशियन ऑन द कंट्रोवर्सी ऑफ द रिसर्च मेथोलॉजी, दैट्स नॉट माय कंसेप्ट, वो मुझे अभी नहीं छोड़ना। पर
गरीबी तो है ना, भुखमरी तो है ना, दिस इज द फैक्ट। तो वो फैक्ट है तो अब हम क्या करें ना? मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो मेरे हाथ में नहीं है, उसको क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं, जब इलेक्शन आएंगे तब जाके एक्शन ले लूंगा। बट रोज होल डे वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग, प्लीज बी इन एक्शन, डोंट क्रिएट ए फ्रस्ट्रेट क्लब। खुद से भी बात मत करो, थिंक अबाउट सॉल्यूशन इफ यू कैन डू। तो चाइनीज की हर चीज अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें अच्छी भी हैं। तो कहते हैं चाइनीज प्रोवर्ब, डोंट ट्राई फॉर डार्कनेस, लाइट ए लैम्प। कहीं भी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, क्लासरूम की प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, ये क्या बात है? तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम। देन किस तरह के आप एकेडमिक लीडर्स हैं? तो ये हमने इस पे काम किया और बाय गॉड ग्रेस, भगवान का बहुत बड़ा हमारे पास हुआ है। कभी कभी लगता है भाई क्यों शुरू कर दिया, कैसे, लेकिन वो शुरू हो गया तो बंद नहीं हुआ, चल ही रहा है, बढ़ ही रहा है। तो गॉड हैज बीन वेरी ग्रेट, वेरी काइंड। हाउ मच टाइम सर? टाइम इज ओवर। देन ये मैंने कहा टेक द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स आल्सो। जो ऑटो ड्राइवर्स है, तो उनको जो वेडिंग कार्ड्स इतने इतने कॉस्टली बनते हैं, उनको कलेक्ट करके, उनको रिसाइकलिंग करके कि अपना बनाओ, और जितना मैक्सिमम कार्ड जिसके पास आएंगे, क्योंकि दे आर नॉट लिटरेट, तो उनके हिसाब से कि उनको विल जस्ट रिकॉग्नाइज देम, एप्रिसिएशन, कि भाई अगर इफ इज सुखी, सुखी राम तो सुखी पे कर दे, दुखी राम कि आपके साथ जर्नी मेरी अच्छी नहीं रही। So they start taking feedback. They are also involved in the traffic management. Traffic is a problem of Agra city. ऑक्सीजन टेम्पल, मैंने टेम्पल बहुत हो गए, अब तो ऑक्सीजन बनाओ। हमारे तो जितने भी गॉड गॉडेस हुए तो जंगलों में रहे, हमने कहाँ मंदिर बनाने शुरू कर देने के लिए। We need ऑक्सीजन ना, वो देखा ना कोविड में, तो हर बर्थडे, हर मैरिज एनिवर्सरी पे, कोई भी धार्मिक ओकेजन है, तो वी मोटिवेटेड देम फॉर प्लांट ट्रीज और सेंड द पिक्चर, फोटो भेजिए। SOS भोजनालय, दे आर रनिंग, ऑटो ड्राइवर्स, ऑटो सर्विसेज ऑन कॉल्स, से नो टू पॉलिथीन, ऑटो एम्बुलेंस हर जगह नहीं पहुंच पाती, तो दे आर रेडी फॉर दैट, उनको ट्रेनिंग दिया गया। से नो टू तंबाकू, लुक यू कैन सी पिक्चर ऑफ ए ट्रैफिक कंट्रोल, हाउ दे आर डूइंग। जब भी कभी कोई शहर में प्रोसेशन लिखता है, मैं लिखता रहता हूँ, गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट पोर्टल में भी ऑल रिलीजियस रैली शुड बी बैन, ये प्रोसेशन, ये अब शादी आती है मुझे घबराहट होती है, मैंने कहा लोग सोने नहीं देंगे, लिखता रहता हूँ, लड़ता रहता हूँ, फिर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो वही प्रेयर, गॉड गिव मी द स्ट्रेंथ टू चेंज द थिंग विच आई कैन and give me the strength which I cannot change, है ना? तो ट्रैफिक कंट्रोल में पहुंच जाते हैं। ऑक्सीजन टेम्पल, SOS भोजनालय, this is the kind of acknowledgement they have. These are the training session, challenges we have faced. Time हो गया, तो फिर मैं I will, if you have any question then you can ask me, otherwise I'll stop here. These are the glimpse of the training program. Pay from heart, ये भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, पर वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। पे फ्रॉम हार्ट ये था कि रिचर्ड थैलर की जो थ्योरी थी इकोनॉमिक्स में, कि आपने जो डिस्कस किया, मतलब रियल जो प्रॉब्लम है उसे हमें सॉल्व करना चाहिए, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये जैसे हम लोग टेस्ट करते रहते हैं। योर नेम? सर मेरा नाम राहुल कुमार है। राहुल। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हूँ। डॉक्टर अजीत कुमार राय सर मेरे सुपरवाइजर हैं। जी सर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग सिग्निफिकेंट ये सब देखते रहते हैं, मतलब हमें रियल चीज पे काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा होएगा। और मैं चाहता हूँ मेरे सभी दोस्त एक बार सर के लिए ताली बजा दें। Now you can have a group also, सर बात कर लेंगे।
इसको एक्शन रिसर्च में कैसे कन्वर्ट करें? हेलो, एक्शन रिसर्च में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आप देखते हैं, इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, नाउ डिप्रेशन हैज बिकम अ पेंडेमिक, वेरी अनफॉर्चुनेट, बट गुड टाइम फॉर द साइकोलॉजिस्ट, दे नीड टू बी इन एक्शन। जैसे डेंगू फैलता है, मेरे एक साड़ू है, वो डॉक्टर है, वो बड़े खुश होते हैं, मैंने कहा भाई साहब आपके खुश। तो इतना केसेस है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में आप यू कैन गो फॉर प्री इंटरवेंशन, यू कैन यूज एनी साइंटिफिक मॉडल, बीडीआई टेस्ट यूज करें, कुछ भी करें। आपने देखा 50 लोगों का डिप्रेशन लेवल ही है, जेंडर देखना है, कुछ भी देखना है उस केसों पे, उसके बाद डिजाइन इंटरवेंशन। हमने क्या किया, अभी एल्डर पॉपुलेशन में आइसोलेशन सिंड्रोम इज ए बिग प्रॉब्लम। बहुत टची स्टोरी आपको शेयर करूंगा, 2 मिनट और लेता हूं, है ना। हमने कहा रोज सुनता था, अरे साहब आजकल एल्डर पॉपुलेशन, बैंगलोर में ये हो गया, एक कपल था डेथ होगी, पता ही नहीं चला। बैंगलोर तो छोड़ो, अब तो आगरा जैसे सिटी में भी ऐसा होने लगा, पड़ोस में कौन मर गया, क्या हो गया, बता पाते नहीं बेचारे, एक एक दो दो बच्चे, सब कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई इंग्लैंड, है ना। दर्द किसी को सुनाने, साथ में भी रहे तो कौन सुन रहा है, आजकल थोड़ा चेंज आ गया है। दीज आर द ऑल बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट विच वी नीड टू फेस, है ना। तो अब क्या हुआ, हमने क्या करा कि मैंने कहा यार ऐसा करो, 6 से 7 बजे तक फ्राइडे क्लब, हमने उसका नाम दे दिया, एक एक्शन लिया, और लोगों को जो मेरे अपार्टमेंट में है, फिजिबिलिटी भी देखनी है, टाइम भी देखना है, मुझे ऑफिस का भी देखना है, 6 बजे घर आता हूं, बस बाहर बैठना है। और जितने भी एल्डर कपल्स थे, व्हाट्सएप ग्रुप आराम से बन जाता है सोसाइटी में, उनको बुलाना शुरू कर दिया, ठीक है। वो आते थे, 1 घंटा, मुझे बड़ा फायदा हुआ, 2 घंटे तक मैंने भाई साहब अपना मोबाइल टच नहीं किया। ये भी तो प्रॉब्लम है ना, मेरे को भी एडिक्शन है, थोड़ी देर बाद देखता हूँ व्हाट्सएप पे कुछ आ तो नहीं गया, जॉब तो नहीं चला गया मेरा। तो भी अच्छा उसमें ब्रिज करना, हाँ एल्डर लोगों के लिए 70+, यंग लोगों भी आने लगे, उनका संवाद, कम्युनिकेशन, उसको आपने देखो। फिर एक स्टूडेंट ने इसको एज ए रिसर्च वर्क ले लिया, दिव्यांश, उसने रिसर्च वर्क लिया कि भाई देखा कि पहले, अब मैंने कहा जा जाके इनका इंटरव्यू लो, साइकोलॉजिकल हेल्थ असेस करो, इसके बाद इसका क्या इंपैक्ट आ रहा, देन यू कैन गो फॉर एनी क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च। इंडियन यूनिवर्सिटी में अभी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रिसर्च मेथोलॉजी को लेकर है नहीं, पर कुछ लोग अब आ रहे हैं, गिरीश मिश्रा साहब, खान साहब जैसे, तो दे विल टॉक कि वाई थोड़ा फ्लेक्सिबल रिसर्च मेथोलॉजी में होना चाहिए। केस स्टडी इज ए गुड वे, यू कैन राइट अ केस आल्सो, क्या इंपैक्ट आया। तो ये सारा का सारा, जब भी कभी अभी टाइम मिलेगा, आई सजेस्ट यू, जो जो अपने एरियाज में है, एक्शन रिसर्च डेवलप करें। अब एक मैंने बताया लेडी का, विंग कमांडर थे सक्सेना साहब, उनकी वाइफ हमें मिली, कहने लगा आप फ्राइडे क्लब कब शुरू करेंगे, जब हम मर जाएंगे। मेरी वाइफ को बुरा भी लगा, तो वाइफ इतना नहीं है एक्सपोजर, मैंने कहा यार मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता कोई कैसे भी बोले, तो साइकोलॉजी के आदमी समझ जाते हैं वो क्यों बोल रहा है, बेचारा स्ट्रेस में है, परेशान है, एम्पैथाइज करना जानते हैं हम इन सब चीजों को, ठीक है। बहुत सारे बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं हमसे। अब कल हमारी फ्राइडे क्लब मीटिंग थी, 6 बजे से हमने कल मीटिंग रखी थी, 5:45 बजे मैसेज आया, मिसेस सक्सेना इज नो मोर। तो मतलब लगा, तो बेचारे वेट करते हैं आपसे बात करने के लिए, और मुझे लग रहा है ये छोटे छोटे इंटरवेंशन अगर आप कहीं भी यूज करें, हमारे ये देखो व्हाट्सएप, ये सोशल मीडिया के कुछ अच्छे फायदे भी हैं, नुकसान ही नहीं है। तो मैंने जैसे ही मैसेज डाला एक साइकोलॉजी ग्रुप में, तो 3 जगह स्टार्ट हो गया बैठे बैठे, आई हैव बिकम अ लीडर, दिस इज लीडरशिप। द्वारका न्यू दिल्ली में एक साइकोलॉजिस्ट है, एक मैनेजमेंट की स्कॉलर है, गोमती नगर लखनऊ में। तो फ्राइडे क्लब बैठे बैठे, तो ये मेरे को दिमाग में सुबह से चलता रहता है, वाइफ जरूर दुखी रहती है, तुम्हें ये नहीं लग रहा कि प्लास्टर गिर रहा है, पानी मैंने कहा भाई ये बड़े बड़े काम मुझे करने दो, छोटे छोटे तुम। तो थैंक यू वेरी मच राहुल, बहुत अच्छा आपने सजेशन है, कभी टाइम मिलता है तो और डिस्कस, यस प्लीज।
Your good name? Sir, my name is Adnan. Adnan. Yeah, Adnan. Sir, in my opinion, you are the right person from whom I can ask a query. Sir, from couple of years, I have been noticing a change in my society where I live. Number of people who were used to play with me in my childhood, those candidates are now these days busy in playing PUBG and all the time they are using their phones. So this is causing great impact on their employment. No, I am pretty much sure that unemployment is a very major problem in our country, but there are lack of efforts from our side. So how can we tackle this situation, this problem? This is my question. अदनान, बहुत अच्छा, बहुत ही गंभीर विषय है। अब हमारे देश के जो लीडर हैं, हीरो हैं, वो भी कहते हैं, कपिल शर्मा, हेलो लूडो, जीतो। अरे भाई, कोई हार रहा है तभी तो जीत रहे हैं। मेरे पास इतने बिलीव मी इतने यंग बच्चे हैं जो एडिक्शन के शिकार हो चुके, गैम्बलिंग। इट्स अ वेरी सीरियस इशू। लेकिन करें क्या, ऑप्शन मेरे पास भी नहीं है। लेकिन एक चीज, मैंने एक लेक्चर में इसी तरीके से बात कर रहा था ऑनलाइन, तो मैंने एक आर्टिकल भी लिखा, 2T till T। अगर आप तो इतना एडिक्शन भी होंगे, पर बच्चों को देखो आप, है ना। तो मैंने कहा एक प्रैक्टिस करके देखो कि 2T मतलब ट्यूसडे एंड थर्सडे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं याद रखने के लिए, और टिल T मैं फोन नहीं देखूंगा। मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट किया, पर मुझे अंदर से बड़ी बेचैनी होने लगी, घबराहट होने लगी। और मैंने कहा राइट डाउन योर ओन एक्सपीरियंसेस, क्या क्या आपको महसूस हो रहा है। इंट्रोस्पेक्शन पढ़ाते हैं ना साइकोलॉजी में, वो लिखो क्या क्या आ रहा। फिर उसका देखो, सीबीटी में, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में पढ़ाते हैं, थॉट प्रोसेस को रिकॉर्ड करो। अब अदनान, आपकी समस्या तो दूसरी है। जो चीज हमने जेल की प्रोजेक्ट की तो मैंने बात ही नहीं करी, है ना। वो बात करूंगा तो पूरा दिन मुझे चाहिए। जो हमने जेल में एक्सपेरिमेंट किया, हमने वहां ग्रुप काउंसलिंग सोचा था, क्योंकि जेल का जो लगता है कि वो आधे 50% लोग या तो दे कमिट सुसाइड आफ्टर द जेल, क्योंकि समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, या दे आर मोर इन्वॉल्व इन द क्राइम। अब करें क्या, सोसाइटी का कितना बड़ा लॉस, मैन पावर लॉस, फैमिली का लॉस। हमने ग्रुप लेक्चर में स्टार्ट किया, ग्रुप काउंसलिंग, तो देख रहे थे एब्सेंटेज रेट वाज धीरे धीरे, आज 15 थे, कल 10 रह गए। मैंने सोचा कि नहीं यार, एज ए टीचर हर आदमी को सोचना पड़ेगा एक्शन रिसर्च में, वी नीड टू मेक ए सम चेंज। देन वी डिजाइन, क्रिकेट का शोर शराबा हो रहा था, आजकल डीएनए में आ गया क्रिकेट, तो क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया। आई विल शेयर, आप ग्रुप बनाइएगा, मैं उसमें एक्शन रिसर्च के और एग्जाम्पल दूंगा। इतना जबरदस्त माहौल चेंज हो गया, तो पूरा दिन क्रिकेट की बात करते, चेक और असेस द डोपामाइन लेवल ऑफ देम। इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, उससे पहले डोपामाइन का लेवल क्या था, क्रिकेट एज ए इंटरवेंशन व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस, उसके बाद क्या आ गया। आज सैटरडे को मेरा डे होता है, मैं सोच रहा था खान साहब को कैसे पटाऊं, लेकिन भैया इनसे मुझे डर लगता है, मैं कह नहीं पाया। माई कमिटमेंट इज ए कमिटमेंट विद द ऑटो ड्राइवर्स और जेल बंधु। लेकिन वहां कुछ और लोग जा रहे हैं, मेरे स्टूडेंट जाने लगे, उनको इतना मजा आने लगा। अरे मैंने कहा पकड़ के ना बैठ जाए तुम, इतना मत जाया करो भाई। तो प्लीज सोचो, ऑब्जर्व करो। झुंड पिक्चर देखी आपने अमिताभ बच्चन की, है? जरा देखने की कोशिश करना, उससे देन यू कैन लर्न एंड डिजाइन इंटरवेंशन। अदनान, आई विल बी ग्रेटफुल, हैप्पी इफ यू कैन मेक सम डिफरेंस। टीचर यार, हमें तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और इससे बढ़िया काम कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो ऐसा लगता है। अब तो तनख्वाह भी अच्छी मिलने लगी, पहले तनख्वाह को लेकर रोते रहते थे, बट फिर भी बातें ऐसे करेंगे जैसे सबसे दुखी आदमी यही है। कई टीचर्स जो है घर में ऐसी बात करते हैं, तो उनके बच्चों ने कसम खा ली, कुछ भी बन जाओ टीचर नहीं बनूंगा, और फिर भी कहते पापा इतने बेशरम है, सुबह सुबह फिर तैयार होके हो जा। अबे इतनी गंदी जगह है तो छोड़ क्यों नहीं देता। Because sense of gratitude in here, we are paid handsome salary. Can you make a difference wherever you are? If you cannot make a difference, तो मुझे तो लगता है
ज्यादा बोल देता हूं मैं कभी, लानत है हमारे टीचर होने पे। एक बच्चे में भी डिफरेंस पैदा कर लो, एक को अडॉप्ट कर लो भाई साहब। एक बच्चा उदय त्यागी सुबह से शराब पीता है, डिसिप्लिन कमेटी अपनी बात कर रही है, मैंने कहा नहीं, मैंने डायरेक्टर के रूप में नहीं बुलाया तेरे को, कैन आई हेल्प यू? डिसिप्लिन कमेटी अपना काम करेगी। रोज लड़ता है, झगड़ता है, शराब पी के सुबह से आता है, और आई वांट टू सी क्यों कर रहा है बेचारा ऐसा। एक्सक्यूज मी सर, सेकंड सेशन भी है अभी। बहुत बहुत शुक्रिया सर फॉर द वंडरफुल डिस्कशन। मैं कंक्लूड करूं अपनी बात को। एक्शन रिसर्च जिस तरह से मैंने आपसे शेयर किया था, if you are really interested to seek the happiness, please start accepting the action research. मुझे conclude करने दें, आके बैठ जाओ 5 मिनट के लिए. As traditional method of research, we used to select the variable, select the tool and visit the field to collect the data, simply examine the relationship and submit the thesis. What is the implication? As a researcher आपको क्या मिला, as a guide मुझे क्या मिला, institution को क्या मिला. जैसे सर ने कहा कि अगर एक इंडिविजुअल के भी जिंदगी में आप बदलाव ला पाते हैं तो इट इज़ मोर देन एनीथिंग एल्स. उससे जो खुशी मिलती है तो ट्रस्ट मी वो कहीं नहीं मिलती है. सो ट्राई and start going for the action research. For example, if you are willing to examine the relationship between stress and mental well-being, अब इसी पर शुरू कर दीजिए. Try to give a different level of stress into the lab and examine the mental well-being. आप 10 सब्जेक्ट्स पर रिसर्च करिए, आपकी थीसिस आउटस्टैंडिंग होगी. और देखिए जैसे एक्शन रिसर्च पर सर ने बात की, इट इज़ ए क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम. उस रिसर्च पैराडाइम का एक्सेप्टेबिलिटी कम है, इसीलिए है कि यू आर नॉट एबल टू इस्टेब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट. लेकिन जब इस तरह की सेटिंग्स में आप रिसर्च करेंगे क्वालिटेटिव को, तो यू विल बी एबल टू इस्टेब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट कि ये स्ट्रेस था तो उसका ये फ़र्क आया. और हर पल आपको फीलिंग आएगी कि यस आई डिड इट. और अगर वो फीलिंग लानी है तो सर भी आई एम नॉट श्योर, लेकिन आई एम श्योर लिटिल बिट. 60 प्लस हूँ, मैं भी 60 प्लस हूँ. हमारे चेहरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद हम बुढ़े नहीं लग सर तो हम बुढ़े शायद नहीं लग रहे हैं अभी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वजह यही है कि हर पल वी यूज टू फील ए हैप्पीनेस. एक छोटा सा केस आपको बताऊं कि मेरे गांव में मॉस्क का कंस्ट्रक्शन हो रहा था. इट वाज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट. मैंने गांव में विजिट किया तो लोगों ने कहा कि बेटा कुछ करो. देन आई स्टार्टेड. बहुत बड़ा काम हो गया. मेरे फादर जो हैं वो ज़मींदार हैं, लेकिन ट्रेडिशनल फैमिली. सर पर्सनल केसेस जब तक ना डिस्कस करें, मेरे ख्याल से केस स्टडी या एक्शन रिसर्च कंप्लीट नहीं होती है. तो आई डिस्कस विद माय फादर कि देखिए ये काम कराना है. ही रजिस्टर्ड कि नहीं वो लोग ऐसे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, डिस्करेज करेंगे, तुम्हें परेशानी वगैरह वगैरह. लेकिन आई डिसाइडेड टू गो फॉर. मैंने वाइफ से मशवरा लिया, बोले कि नहीं काम करना है. बेटे से मशवरा लिया, काम करना है. आई विल गिव यू टू एनी एक्सटेंट. काम शुरू हो गया. बहुत बड़ा काम था. अब देखिए एक छोटी सी बात. आई रिक्वेस्टेड टू माई फादर कि देखिए मस्जिद की मीनार बननी है, एक मीनार आप बनवा दीजिए. इट कॉस्ट 60,000 रुपीज़. माई फादर बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्हीं की वजह से हूँ, लेकिन यू नो इन स्पाइट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलरिटीज वी आर डिफरेंट. ट्रेडिशनल बैकग्राउंड ऐसे ही रहे, उन्होंने पैसे को ऐसे ही कमाया है, ऐसे ही देखा है. ही वॉज थिंकिंग ऑन द वे. हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना गुजर गया, लेकिन फैसला नहीं ले पा रहे थे. आई यूज टू पुश. आप हाँ कह दीजिए, मैं आपके नाम से ये सारा काम करा रहा हूँ, वो भी करा दूंगा. नहीं. इन द मीन टाइम इफ आई गो बैक टू द 50 years बैक, गाँव में एक जो फैमिली मेरे घर में एक लेबर की हैसियत से काम करती थी, यानी रोज़मर्रा की खाने पीने की ज़रूरतें भी मेरे घर से जाती थी. उनका एक बच्चा गांव से निकला और दिल्ली में वो अपना कारोबार कर रहा था. ही केम टू नो कि गांव में मस्जिद का काम चल रहा है. वो आया और 1 हफ्ते के अंदर एक नहीं 4 मीनार उसने बनवा दी. यहाँ फ़र्क समझिए कि अल्लाह सुब्हानो ताला
जिसको अपने काम के लिए पसंद कर लें, उससे बड़ा अचीवमेंट कोई नहीं है। मैं बार बार मेरे चेहरे से महसूस करिए, मुझे तकलीफ हो रही है। मैंने अपने वालिद से कहा, अमन के देखिए आपके फैसले की वजह से डिसीजन ये है कि आपको नहीं पसंद किया गया, और उन्होंने अपना काम, अल्लाह ने अपना काम किससे ले लिया? जो आपका लेबर था। तो ये एक्शन रिसर्च के जरिए ही अब, और वो जो फीलिंग और खुशी आती है ना कि यस मैं किसी के काम आया, वो शायद किसी और काम में नहीं है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। सेकेंड सेशन भी सर से मैंने रिक्वेस्ट की है, कंटिन्यू रहेगा। प्लीज ट्राई टू मेक ए डिफरेंस। मैं अक्सर सवाल पूछता हूँ, इज इट डिफिकल्ट टू बी गुड? सर से मिलने के बाद आप महसूस करिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। महीनों महीनों सालों साल हम टेलीफोन पे बात करते रहे, कभी नहीं मिले, लेकिन ऐसी बॉन्डिंग हो गई थी कि शायद इससे प्यारा मेरे लिए कोई नहीं है। ऐसी इनकी फीलिंग थी। हर रोज हम लोग बात करते थे, 10 मिनट ये काम ऐसे करना है, ये ऐसे किया जा सकता है, तो रास्ता निकालिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बातें करनी हैं कि सोच सकते हैं आप कि कुदरत जिसको पसंद करे, अल्लाह सुब्हानो तआला जिसको पसंद करें वो अपना काम ले लेते हैं, और जिनको उन्होंने पसंद कर लिया तो फिर सारे हमारे मामलात आसान हो गए। एक शेर है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थे कर रो बयां। सर, एक दूसरे के दर्द में अगर हम शामिल हो जाएं तो मेरे ख्याल से उससे बड़ी इबादत या पूजा कोई नहीं है। अगर कुदरत को या अल्लाह सुब्हानो तआला को अपनी इबादत करानी थी तो एक से एक बड़े नबी, हजारों हजारों साल की उम्र थी, हम अगर एक चेहरे पे खुशी ले आए तो मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी इबादत है। थैंक यू सो मच। लंच के बाद मिलते हैं, और थैंक यू सर। थैंक यू सर।